کر سکیں. آپ سب کو آج کا سنڈے کا دن سب کو مبارک ہو، کیونکہ اس دن ہم سب چرچز میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے اور گیت گاتے، خدا کی حمد اور تعریف کرتے ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. آن لائن چرچ کے لیے بھی خدا نے ہمیں یہ سہولت دی، اور میں اس بات کے لیے خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا ہوں. اور اس وقت میرے ساتھ خدا کی خادمہ مسز انور فضل، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو پاسٹر صاحب. اور اسی طرح پاسٹر منور فضل، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح پاسٹر شوکت فضل، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید. پیارے بھائی ایرک پیٹر صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بھائی منیر بٹی صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح ساجد بیٹا، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید. اسی طرح پیارے بھائی پیارے بھائی سلیم رحمت سندھو صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح مینویل، آپ کو بھی، پاسٹر جی آپ کو بھی، میجر صاحب آپ کو بھی، اور خدا آپ سب کو برکت دے. اور اسی طرح اپنے صاحبزادوں کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. تو بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اخبار کی مبارکباد دیتا ہوں اضحاق نیوز پیپر کے لیے، اور بڑا خوبصورت آپ نے پرنٹ کیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس نیوز پیپر کی بھی. بہت بہت شکریہ سر. خداوند کا شکر ہے کہ یہ اضحاق اخبار آج پاکستان کے مختلف شہروں میں، اضحاق اخبار خداوند کے فضل سے آج پاکستان کے مختلف شہروں میں اور مختلف گھروں میں پہنچ چکا ہے. اس کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، اور تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جن کے وسیلہ سے آج یہ اخبار تیار ہو کر لوگوں کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. اور پاسٹر شوکت صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس نیوز پیپر کے. پاسٹر شوکت فضل، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. پیارے بھائی آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو پاس صاحب، خدا برکت دے. یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا کہ آئزک ٹی وی کا جو اخبار ہے، نیوز پیپر ہے، وہ بھی پورے پاکستان کے اندر جائے. اور پاس صاحب آج تقریباً تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ اخبار پہنچا ہے، بہت سارے شہروں کے اندر. اور یہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نیوز پیپر کے ذریعے سے بھی لوگ آئزک ٹی وی کے ذریعے سے بھی برکت پاتے ہیں، اور اس نیوز پیپر کے ذریعے سے بھی برکت پائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اپنے شہروں کی، اگر کوئی بھی آپ خبر دینا چاہیں، آپ کے پاس کوئی بھی نیوز ہو، تو آپ ضرور ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم ضرور اس نیوز پیپر کے اندر آپ کی آواز کو اٹھائیں گے تاکہ خدا آپ کو برکت دیں. اور آپ نمائندے بھی اس کے بن سکتے ہیں، جس طرح آپ آئزک ٹی وی کے نمائندے ہیں، اس نیوز پیپر کے بھی آپ نمائندے بن سکتے ہیں. تو میں پاسٹر ندیم سلیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی ساری ٹیم کو بھی خدا برکت دے، اور نیوز پیپر کے ذریعہ سے بھی خدا آئزک ٹی وی کو اور تمام ٹیم کو برکت دے. سارا جلال یسوع کے نام. سر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آن لائن اخبار بھی ہے. جی، اضحاق ٹی وی کو، اپنا اضحاق اخبار کو آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی. اور خداوند کے فضل سے میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اپنے علاقوں کی خبریں ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں بھیجیں تاکہ وہ نیکسٹ اس شمارے میں لگ سکیں. تھینک یو سو مچ. میں چاہتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں اس سارے کام کے لیے، اور سارا جلال ساری عزت یسوع مسیح کے نام. آمین. تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے، آج کی عبادت کا آغاز کریں گے. درخواست کروں گا پیارے بھائی سلیم رحمت سندھو صاحب سے دعا میں رہنمائی فرمائیں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس کے نام میں. اے خدا ان شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہمارے دن بخش دیا. خداوند آپ نے ساری رات ہماری مدد فاطر نمانی کی اور آج کا ہمیں یہ دن بخشا ہے. اے خداوند آج کی اس عبادت کو تیرے سامنے رکھتے ہیں میرے خداوند. جب پوری دنیا میں تیری ستائش پرستش ہوتی ہے تو اے خداوند ہم آئزک ٹی وی کے لیے شکر گزار ہیں، پاسٹر انور صاحب کے لیے شکر گزار ہیں، انٹرنل لائف منسٹری کے شکر گزار ہیں. اور خداوند آج خصوصی طور پر ہم شکر کرتے ہیں آج اخبار کے لیے، ایک نیوز پیپر کے لیے، ایک جدید میڈیا کے لیے جو ابھی یہ پاکستان میں سارا کام کرے گا اور جو خبریں ہیں یہ سارے پاکستان میں پہنچیں گی. تو اے خداوند آج کی ساری عبادت کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں میرے خداوند. آج کے پیغمبر کو، ساری ستائش کو، ساری پرستش کو اے خداوند تو اپنے ہاتھوں میں لے. اے خداوند ہم سب کے ساتھ ہو. اور اے خداوند ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو آج چرچز میں نہیں ہیں لیکن اے خداوند وہ آن لائن عبادت دیکھ سکتے ہیں. اے خداوند ہم سب کے ساتھ ہو. اور اے خداوند آج کے پیغمبر اے خداوند جس کے منہ میں تیرا کلام ہے اپنے اس بندہ کے ساتھ ہو.
उसको अपना और ज़ोर बख्श और ताकत बख्श, ताकि वो तेरे नाम की और ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा ताकत से मुरादी कर सके। हम सब के साथ हो, तू यहोवा जरी खुदा है, तू मुहैया करने वाला खुदा है। ऐ खुदावन तमाम ऐसे लोग ऐ खुदावन जो मुश्किल में हैं, जो परेशान हैं, ऐ खुदावन उनके साथ हो, ऐ खुदावन उनके लिए मुहैया कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई सलीम रहमत संधू साहब, खुदा आपको भी बरकत दे और आपकी फैमिली को भी बरकत दे। तो प्यारे भाई शौकत, आप वर्शिप शुरू करें। जी भाई साहब, मैं चाहूँगा ज़बूर नंबर 139 है, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। मैं चाहूँगा कि खड़े होकर हम इस ज़बूर के साथ अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करेंगे। आइए सब मिलकर जहाँ भी आप मौजूद हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खड़े होकर अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे ज़बूर के साथ। थैंक यू जीसस। आइए सब मिलकर क्लैपिंग कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं उसकी हजूरी के अंदर। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। मैं चढ़ जावा जे असमाना ते ओते है तूई। मैं चढ़ जावा जे असमाना ते ओते है तूई। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तूई। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तूई। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। समुद्रों पार जाओ तेरा सुबाने पंखनो पहला। समुद्रों पार जाओ तेरा सुबाने पंखनो पहला। ते भी तेरा हाथ मैनू या रब राह बखावेगा। ते भी तेरा हाथ मैनू या रब राह बखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरे वीर। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरे वीर। तेरा हाथ सजाओ पाताल बिछो दे मदद मेरी। तेरा हाथ सजाओ पाताल बिछो दे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। जे मैं आका के मैनू गुप हनेरा उन छुपावेगा। जे मैं आका के मैनू गुप हनेरा उन छुपावेगा। तेरे गिरद हनेरा भी कलोचा नहीं हो जावेगा। मेरे गिरद हनेरा भी कलोचा नहीं हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावा। नहीं है सामने तेरे हनेरा
भी नहीं है सामने तेरे, हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है, वाक चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है, वाक चानन भी खुदाया तेरे रोज़ों मैं भला नस एक किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नो नसा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नो नसा। आए मेरे अज़ीज़ों, सब तशरीफ रखें, बैठ जाइएगा। वक्त है कि हम एक दुआ करेंगे इस बड़े फजल के लिए, इस रहम के लिए। अगरचे चर्चेस बंद हैं, लेकिन आइज़क टीवी के वसीला से लोग अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त इबादत कर रहे हैं। तो आइए हम एक दुआ करेंगे पास खालिद परवेज़ के साथ मिलकर इस मकसद के लिए, आइज़क टीवी के लिए, कि खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हजारों लाखों नहीं बल्कि मिलियंस लोग इस वक्त आइज़क टीवी के वसीला से संडे सर्विस के अंदर शरीक हैं। आइए दुआ कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद पुकारते हैं कि तू खुदावंद जलाल का बादशाह है। खुदाए अजीम, हम जमीन तक झुकते हैं, तुझे सिजदा ताजीम करते हैं, क्योंकि तू इज्जत और ताजीम के लायक है, और तू वादों में सच्चा खुदा है, और तेरे वादे हाँ के साथ हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। हम चौकी पर, जमीन पर झुकते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी हजूरी, तेरी मामूरी, तेरी तजल्ली, तेरा पाखरू तेरे लोगों को छूना शुरू कर दिया है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम ने इस बड़े सोर्स के लिए, खुदाम इटर्नल लाइफ चर्च आइज़क टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके वसीला से कौमें, उम्मतें, कबीले बरकत, शिफा, रिहाई, नजात, जिंदगी पाते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इसहाक टीवी के लिए, आइज़क टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने मुल्क पाकिस्तान में मुमकिन ठहराया। तेरे खादिम, तेरे ममसू के वसीला से मुल्क पाकिस्तान से पूरी दुनिया में सब नशरियात हो, तेरे कलाम की बशारत हो, शादी आजम का काम हो, ग्रेट कमीशन का काम हो, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम से असुदा हो जाएं, बहरे सुनना शुरू करें, अंधे देखना शुरू करें, पस मुर्दा खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से उठ खड़े हो जाएं। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इटर्नल लाइफ चर्च आइज़क टेलीविजन के वसीला से पूरी दुनिया के लोग बरकत पाते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरा पाखरू जो तख्लीक का काम करता है, हर दौर में, हर वक्त में खुदाम तो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐदती के में खुदाम तो अपने नबियों के वसीला कलाम करता है, ऐद जदीद में तो रसूल के वसीला से कलाम करता है, और खुदाम इस दौरे हाजरा में तो अपने खादमा के वसीला से, खादमाओं के वसीला से काम करता है। आज इटर्नल लाइफ चर्च आइज़क टीवी के थ्रू खुदाम पूरी दुनिया के लोग बरकत पा रहे हैं, शिफा, रिहाई, जिंदगी पा रहे हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारा दुआ करना, परस्तिश करना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, और तेरे कलाम के अंदर लिखा जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और खुदावंद यीशु के नाम में आइज़क टेलीविजन के वसीला से खुदावंद जितने मुतासरीन हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो खुदावंद यीशु के नाम में तेरे बेटे के जी उठने की कुदरत के वसीला से यीशु के नाम में शिफा पा जाएं। जितनी दरख्वास्त, मिन्नत, फरियाद तेरे हुजूर रखी जाएंगी, खुदाम तेरे हुजूर बखूर की मानत पहुंचेगी। और खुदाम यीशु के नाम में आज तेरे कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगी में
अजीब और जलाली काम हो। तेरा कलाम लाखता ला तब्दील है। तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो शिफा मिलती है। तेरे कलाम के अंदर लिखा है वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और उनको उनकी हिलाकत से रिहाई बख्शता है। और तेरे ही कलाम के अंदर लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर मेरे हुजूर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब होंगे और अपनी बुरी राहों से बाज आएंगे, तब मैं आसमान से उनकी दुआ को सुनूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। और तेरे ही कलाम के अंदर लिखा है खुदाम यीशु मसीह पर ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज तेरे कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगी में निजात, बहाली, बरकत, कामयाबी, कामरानी आ जाए। तेरे लोग हमेशा तेरे नाम को मुबारक कहें। सब खुदाम कदाम के लिए, खुदाम तेरे खादिम, तेरे ममसू सीनियर पास्टर अनवर साहिब के लिए तेरी बरकत सलामती की दुआ करते हैं। उनके जिंदगी के साथी के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं, हाजरीन के लिए, समाइन के लिए बरकत चाहते हैं। तेरे लोग हमेशा तेरे नाम को मुबारक कहें। आज हम जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरे तेरा पाक रूह एक लम्हा हमसे जुदा होने पाए। साजों पर, आवाजों पर, हर चीज पर पाक बेया भरे का लहू यानी यीशु मसीह तेरे लहू को मांगते हैं। तेरा पाक रूह एक लम्हा हमसे जुदा होने पाए। चुना और बड़ी बरकत देना मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आइए ज़बूर 72 के साथ हम अपनी प्रस्तुति का और आगे आगाज करेंगे, बढ़ेंगे। रहेगा नाम सदाती कर मसीदा। हम सारे मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे जी। हालेलुया हालेलुया। आइए सब मिलकर मसीदा। रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा। रहेगा जद तलक सूरज। रहेगा जद तलक सूरज। रहेगा उस तो बरकता सब लोग उस तो बरकता सब लोग पावन। देखो माहोसियां धन्यवाद गाव। देखो माहोसियां धन्यवाद गाव। जो इसराइलियां का रब खुदा है। जो अजाइब कम करता धन सदा है। अजाइब कम करता धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला। खुदा दा पाक ना है शान वाला। सदा की कर मुबारक हो रहेगा। सदा की कर मुबारक हो रहेगा। रहेगा नाम सदा की कर मसीदा। रहेगा नाम सदा की कर मसीदा। रहेगा जग तलक सूरज। रहेगा जग तलक सूरज। रहेगा बजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। बजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। कहो आमीन मिल फिर दूजी बारी। कहो आमीन मिल
तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा। सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सदा तो है सदा दीगर रहेगी, सदा तो है सदा दीगर रहेगी। रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर एक और दुआ करेंगे, उसकी हज़ूरी में झुकेंगे, इस सारे वक्त के लिए उसका शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस तेरी शुक्रगुजारी करते यीशु पर खुदावंद, तेरे पास आते यीशु पर खुदावंद कि तूने हमें वक्त दिया और हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा तेरा कलाम हमारे लिए बरकत का बाइस है, तेरा कलाम हमारे लिए खुदा राह और जिंदगी है। खुदा कलाम में लिखा है कि तू मुझ में कायम रहोगे, मैं तुझ में कायम रहूंगा। यकीनन तेरी बातें आया खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील करती है और पाकरू नई खुशी, नई ताजगी और नई है खुदा खुशियां देता है। ताकि तेरे कलाम में लिखा है मैं हर रोज तुम्हें बरकतें देता हूँ, हर रोज नई खुशियां। जबकि ये सुपर खुदावंद बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, लोग परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, पर तू अपने लोगों को उठा खड़ा कर देता है दूसरों के लिए। ये सुपर खुदावंद, ताकि ये सुपर खुदावंद तेरे कलाम की तसल्ली बख्श बातें हमारे लिए तसल्ली लेके आए, हमारे लिए तमन्नान लेके आए जो कोई इंसान नहीं दे सकता। ये सुपर खुदावंद आज सुबह जितने लोग देख रहे हैं उनको तसल्ली तमन्नान दे। ये सुपर खुदावंद बीमारियों में है, मुश्किल में है, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबतों में है, यीशु के नाम से निकाल और पाकरू तेरा हाथ बढ़े। आज हम घटे और इस सुबह को यीशु पर खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते कि तूने पूरा दिन पूरी रात हमारी हिफाजत की है। अब सारे महीनों में भी तू हमारी हिफाजत करना और खुदा हर बीमारी से, हर चीज से बचा के रखना। और पाकरू अपने खादमों के साथ हो, आइज़िक टीवी के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, सारी टीम को यीशु मैं तेरे हैंड ओवर करती मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए और प्रसच में बढ़ेंगे, गीत गा के मसा पाके ओदी बार गाचे नच्चा मैं सदा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, मुझे आपको हम सबको खुदा ने मौका दिया है। आइए हम आगे प्रसच के लिए बढ़ेंगे जी। आइए सब ताली बजाइए, क्लैप कीजिए जहां भी आप बैठे हैं। गीत गा के मसा पाके, गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बार गाचे नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बार गाचे नच्चा मैं सदा। गीत गा के मसा पाके, गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बार गाचे नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बार गाचे नच्चा मैं सदा। ओने मेरिया दुआवां नूं सुनिया, ओने मैनू ज़माने विचों चुनिया, ओने मेरिया दुआवां नूं सुनिया, ओने मैनू ज़माने विचों चुनिया। नूर पाके रूह पाके, नूर पाके रूह पाके खुश होके ओदी
बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पा के गीत गा के मसा पा के खुश हो के ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी नजात पाके हयात पाके नजात पाके हयात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पा के गीत गा के मसा पा के खुश हो के ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओ देखूं तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है ओ देखूं तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है शिफा पाके मौजज़ात पाके शिफा पाके मौजज़ात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा हालेलुया दे नारे हुन लावा मैं पता नासरी के ना तो पावा मैं हालेलुया दे नारे हुन लावा मैं पता नासरी के ना तो पावा मैं पता पाके आइए सब खड़े होकर गाएंगे सब खड़े हो जाएंगे पता के खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी तेरे सबनू नजात यसु नासरी तेरे सबनू हयात यसु नासरी नजात पाके हयात पाके नजात पाके हयात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा गीत गा के मसा पाके गीत गा के मसा पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओ देखूं तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है ओ देखूं तो शिफा सदा जारी है देखे मौज से दुनिया सारी है शिफा पाके मौजज़ात पाके शिफा पाके मौजज़ात पाके खुश होके ओदी बारगाह च नचा मैं सदा ओदी बारगाह च नचा मैं सदा हालेलुया दे नारे हुन लावा मैं पता नासरी के ना तो पावा मैं हालेलुया दे नारे हुन लावा मैं पता नासरी के ना तो पावा मैं पता पाके नारे लाके पता पाके नारे लाके खुश होके
ओदी बारगाचे नचा मैं सदा 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 ओदी बारगाचे नचा मैं सदा। आइए मेरे चीजों, इसी मस्सा में अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। यकीनन मेरे चीजों रूह कुस का मस्सा यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद है। आइए दुआया हालत में ख्वाहिर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, मुकम्मल तौर पर पा खुदा यीशु की तरफ अपनी निगाहों को लगा लीजिएगा। सब मिलकर गाएंगे। रूह जुम्बश करता है अपने लोगों पर, उन लोगों पर जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हज़ूरी में झुकते हैं। रूह कुछ वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। Hallelujah,
अजीजों सब दुआ करना शुरू कीजिए। मासूम मुनव्वर फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा की खादमा के लिए, मिसेस अनवर फजल के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे कि जब खुदा की खादमा खुदा के कलाम को बयान करे तो आज का कलाम न सिर्फ हम सब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बायस से बरकत हो। आइए मेरे अजीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। सब होंठों को खोलिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम, देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार मोहब्बत के लिए, लव के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगियों के अंदर बख्शा। और जितने भी आइजक टीवी देख रहे, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तेरा पाक रूह एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बेटे बेटी पर, बुजुर्गों पर मांगते हैं ताकि आज का दिन इन प्यारों के लिए मुबारक हो खुदाम। और देख जब तेरा कलाम आज तेरी खादमा के वसीला से तेरे प्यारे सुने बरकत पाए, तू अपनी खादमा को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना ताकि तेरे रूह की आग तेरी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदा पाक रूह हम तुझे आगे करते हैं ताकि तेरा कलाम तेरी खादमा के वसीला से एक एक जिंदगी के अंदर शोक ना फैल लाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। तो अपनी खादमा का मुंह बनना, जुबान बनना, गला बनना खुदाम, ताकि आज का कलाम हम सबों की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, बेदारी लाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। अब हम तेरे कलाम को और तुझे आगे करते हैं मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद रखेंगे, हालेलुया का कोश गाएंगे। रुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदा तू आ। सब कहें अपने अपने घरों में, अपने अपने रूह में, जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, सब कहें रूहे पाक खुदा बंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। की कुदरत से, तेरे कलाम की कुदरत से आज एक एक का जुआ, गुर्बत का जुआ, खुदा लांग का जुआ, हर तरह की काश और बंदिश का जुआ मेरे यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ, यीशु के नाम में टूट जाए। आज एक एक बंधन यीशु के नाम में खुल जाए, जिनका बदन बंधा हुआ है यीशु के नाम में खुल जाए, जिनकी आंखें, दिमाग
खुदा हम हर एक जुए को तोड़ते हैं यीशु तेरे रूह की आग से। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं अपने आप को इन तेरे प्यारों को तेरे पाक रूह के सुपुर्द करता हूँ। खुदा हम तेरा जिंदा चर्च है, मेरा बदन तेरा चर्च है, मेरी रूह तेरी स्पिरिट है। और खुदा देख, मैं अपने आप को, निदा को, एक एक बहन और भाई को तेरे खून में छुपा देता हूँ। बुजुर्ग को, बेटे और बेटियों को, अपनी प्यारी बहनों को तेरे पाकरू के ताबे करता हूँ। आज जब तेरी खादमा प्रीच करे, तेरा पाकरू खुदा देख कसरत से तू अपनी खादमा को इस्तेमाल करना और आज का कलाम एक एक जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो, मसीह के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आप सब कहें कि खुदा मैं तेरा चर्च हूँ और मैं तेरी रूह हूँ और तेरा रूह मुझ पर है। मैं तेरे पाक रूह को वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। और साथ वाले को बताएं चर्च से किस तरह लड़ सकता है। और रूह, खुदा की रूह से किस तरह लड़ सकती है। खुदा की रूह कभी किसी से लड़ नहीं सकती और चर्च से लड़ नहीं सकता। हम सब मसीह का क्या है, चर्च है। एक चर्च बंद हो सकता है आपके एरिया का, आज देखें मिलियन चर्च ऑनलाइन लगे हुए हैं। अबलीस हारा हुआ है और यीशु जीता हुआ है। उस जीते हुए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। और खुदा की आत्मा को जोरदार तालियों में हम वेलकम और खुशामदीद करते हैं। सब तशरीफ रखें और खुदा के कलाम को सुने। प्रेज हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इतने खूबसूरत वक्त के लिए। आज होली स्पिरिट, आज ऐसे लग रहा है कि होली स्पिरिट जुम्बश कर रहा है। यकीनन जब हम होली स्पिरिट को वेलकम कहते हैं अपनी जिंदगियों में, होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हम उसके बगैर कुछ नहीं है। वो हमारा हीरो है और जो है हम जीरो हैं। और आज आपको भी होली स्पिरिट के बारे में ही मैं बताना चाहती हूँ। आज जबकि खुदा के खादम ने होली स्पिरिट को वेलकम किया है अपने घरों में, आपने वेलकम किया है सुबह अपने बदनों में कि होली स्पिरिट आ और तू मुझे संभाले रख। यकीनन हम होली स्पिरिट के बगैर कुछ नहीं है। और कलाम में खूबसूरत बातें जो मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली बख्श हैं। हालांकि आपको पता है सिचुएशन कुछ भी हो, बाहर आप देखते हैं कि सारे लोग, जब मैं देखती हूँ, जब मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो जब वोट होते थे तो ऐसे कास्टिंग होती थी कि ये जीत गया वो जीत गया। पर अब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पे डेथ हो गई है, वहाँ पे जो है। पर मैं मेरे अजीज़ों में आपको ये बताना चाहती हूँ, हालात सिचुएशन कोई जो है कुछ भी हो, पर हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और पाकरू हमारे अंदर है। मेरे साथ निकालें अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत, 17, 18, 19 आयत। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। यकीनन खुदा की खूबसूरत बातें जो मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली बख्श है। यकीनन हम देखते हैं कि उसने कहा है कि आखिरी वक्त आप समझते होंगे कि ये आखिरी वक्त है। पता नहीं ये लॉकडाउन खुलना है, हमने कब बाहर निकलना है, या हमने क्या हमारी जिंदगियों में
क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। हम हर रोज सोचते हैं, हर रोज हमारी जिंदगी में यही होता है कि पता नहीं हमारी जिंदगी में जो है जो हम मर जाएंगे। बहुत से लोग जो है मुझे मैसेज भिजवाते हैं कि सिस्टर जी हम इस बीमारी की वजह से घर में रह रह के बीमार हो गए हैं, हम इस बीमारी की वजह से रह रह के शायद हम लोगों ने बाहर निकलना भी है। मेरे अजीजों, कलाम में आखिरी बात के बारे में लिखा है और वो पाक रूह के बारे में लिखा है कि मैं अपनी रूह हर बशर पे डालूंगा। बशर का क्या मतलब है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ उसने आखिरी वक्त का कहा है, और आप आखिरी वक्त का सोचते होंगे कि यकीनन ये मेरे लिए तो आखिरी वक्त है, पर कलाम की खूबसूरत बातें आपके लिए और मेरे लिए तसल्ली बख्श है। और शुरू में हम देखते हैं कि खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी, रूह शुरू से जुम्बश करती थी, पानियों पे जुम्बश करती थी। मेरे अजीजों, वो रूह हमारे अंदर है जो शुरू से जुम्बश करने वाला खुदा है, जो शुरू से हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। उसने कहा है कि मैं अपनी रूह हर बशर पे डालूंगा। क्यों उसने कहा? और देखें, हम मत्ती की अंजील में देखते हैं कि कलाम में खूबसूरत बातें हमारे लिए बरकत और तरक्की का बाइस है। और उसमें लिखा है उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुदुस कुदरत की वजह से हामला पाई गई। किसकी वजह से? और रूह कुदुस की कुदरत से। शुरू में देखें, उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और ये आखिरी वक्त नहीं है। रूह कुदुस जो पानियों पे जुम्बश करता था वो आज भी आपकी जिंदगी में जुम्बश करता है। उसने कहा कि रूह कुदुस की कुदरत से वो पेट जो है, उसने कहा हामला पाई गई, उसके पेट में है, वो रूह कुदुस की कुदरत से है। कौन सी कुदरत थी? कौन सी चीज थी? उसने कहा कि रूह कुदुस तेरे साथ है, रूह कुदुस तेरे अंदर है। रूह कुदुस की वजह से जो है हामला पाई गई। हम मत्ती की अंजील में देखते हैं, हम लूका की अंजील में देखते हैं, हम मरकिस की अंजील में देखते हैं कि उसने फरिश्ता ने मैसेज दिया कि तू रूह कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। यकीनन मेरे अजीजों, खुदावंद जिंदा खुदावंद है, और खुदावंद हमारी जिंदगियों में ये जितनी भी मुश्किलात हो, प्रॉब्लम्स हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबतें हो, ये वायरस जो है आपने सुना होगा सिर्फ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और जो सारी चीजों पे, इलेक्ट्रिक चीजों पे आता था, पर अब इंसानों में आ गया है। और आप ये समझते हैं कि आखिरी वक्त हो गया है। मेरे अजीजों, ये आखिरी वक्त नहीं है। हमें और आप जिनको खुदा ने चुना हुआ है, हमें तसल्ली के लिए बनाया गया है कि हम आपको तसल्ली दे सके। कोई वो क्या कहता है, कोई इंसान तसल्ली नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज सुबह कि मैं अपनी रूह हर बशर पे डालूंगा। वो क्यों कहता है कि मैं हर बशर पे डालूंगा? वो हर इंसान से प्यार करता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो अफ्रीकन है। 195 कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो बचा हुआ हो, पर वो कहता है कि मैं हर बशर पे अपनी रूह डालूंगा। और रूह पानियों पे जुम्बश करती है। रूह कुदुस की वजह से वो पैदा हुआ। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और आज वो आपके साथ है। और उसने कहा कि मैं हर बशर पे डालूंगा। उसने कहा, जब आपने देखा ईस्टर हमने मनाया है, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि खूबसूरत बातें, जो खुदा की बातें हमने सुने, कुजूरों का इतवार मनाया, फिर हमने जो गुड फ्राइडे मनाया, फिर हमने ईस्टर की इबादत की, और इसके बाद वो जी उठा। और उसने कहा जाओ, उसने कहा औरतों को कहा कि जाओ बशारत की खुशखबरी दो कि मैं जिंदा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे शागिर्दों को बुलाओ, मैं उसको बताऊंगा कि वो मेरी जाके बताएं, जाके खुशखबरी दे। उसने औरतों को कहा, उसने कहा कि औरतों को, और आगे लिखा है और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तो उसने औरत को कहा जाओ जाके बताओ। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्द ही ये काम करेंगे। उसमें लिखा है कि रूह हर पे जुम्बश करेगी। आप देखते हैं ऑनलाइन हर एक, आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा, पर जब ये सारे घर के अंदर है, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, यूरोप क्या, इतने पास्टर सारे आपके साथ ऑनलाइन होते हैं। आप रात गए, सुबह आप देखते हैं ऑनलाइन है। ये रूह है जो जिंदगियों को तब्दील करती है, आपको तसल्ली देती है, आपके साथ है। और उसमें लिखा है और तेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे।
बाद लिखा है, इन दिनों में मैं अपनी रूह में से डालूंगा। किसकी रूह से डालेगा? वो यीशु मसीह की रूह है जिसमें से वो डालेगा। कोई इंसान की रूह नहीं उसने कहा, किसी पास्टर की रूह या खादमा की रूह को नहीं कहा। उसने कहा मैं अपनी रूह में से उन पे डालूंगा, और वो उन पे डालेगा जो रूह कुदुस से भरे होंगे, जो पाक रूह से मामूर होंगे, जो उसके खौफ में डरते होंगे। और वो कलाम हमें बताता है कि मैं कल, आज और अब तक यकसा खुदा हूं। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे प्यार करता है। आज आप सारे देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं। कभी मरता हुआ इंसान आपने देखा है? तड़पता इंसान देखा है? कभी आपने अपनी जिंदगी में सोचा होगा कि ये मेरे साथ होने वाला है और खुदावंद ये जो है ये मैं चला जाऊंगा? कोई भी मरना नहीं चाहता। आज आप किसी से भी पूछें कि आप मरना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। मेरे अजीजों, आपका जिस्म यहीं पे रह जाना है, आपकी रूह जानी है आसमान पे। और रूह के बारे में आज हम सीख रहे हैं कि रूह पानियों पे झुंपश करती है, पर वो आज इंसानों में झुंपश करती है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बाइस है। और कलाम में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेके फिलफोर पानी के पास ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। क्या आपके लिए आसमान खुला है? उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो कहता है कि मैं इस बेटे से खुश हूं जिसको मैंने पाक रूह दिया है, और रूह कबूतर की मानद उसके ऊपर उतर गया। आज उसने कहा है मेरे बेटी और मेरी बेटियां नबूवत करेंगी, मेरे बंदे नबूवत करेंगे, मेरे लोग नबूवत करेंगे, मेरे लोग उठ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जिंदा खुदा हमारे साथ है। और उसने कहा उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, आप भी प्यारी बेटियां हैं। मेरे अजीजों, आप भी प्यारे बेटी हैं जिससे वो खुश है। आज आप खुदा की बातों को सुनते हैं, आज आपको तसल्ली मिलती है कलाम की वजह से। कोई और किताब पढ़ते हैं तो आपको तसल्ली मिलती है? नहीं मेरे अजीजों। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये किताब उसने कहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मुझसे तुम जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। और आज आप प्यारी बेटियां हैं, आज आप प्यारे बेटे हैं जिससे वो खुश है, जो तसल्ली की बातें करता है, जो इत्मीनान की बातें करता है। कोई भी आपको तसल्ली इत्मीनान की बातें नहीं कह सकता, बल्कि गॉसिप करते हैं, बल्कि बहुत से ऑनलाइन होके लोग जो है नेगेटिव बातें भी करते हैं, बहुत सी ऑनलाइन चीजें। हालांकि बहुत से ऑनलाइन होके कलाम की बातों को भी सुनते हैं, कलाम की चीजों को भी सुनते हैं, पर गॉसिप नहीं छोड़ते। हर चीज में नेगेटिव चीज को भी लेके आते हैं। पर मेरे ख्याल से कि अब वो वक्त आता है, वो कहता है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में हर बशर पे रूह डालेगा। वो नेक हो या बद हो, वो काला हो या गोरा हो, वो जो है हर किस्म के बंदे पे वो अपनी रूह डालेगा कि वो हर घुटना मेरे नाम से झुक जाए। आज आपको मेरे झुकने की जरूरत है। आज आपको कहने की जरूरत है, खुदावंद मैं मौजूद हूं, मैं भी तेरी बेटी हूं जिससे तू खुश है, मैं भी तेरा बेटा हूं जिससे तू खुश है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए जिंदगी बख्श है, खुदावंद की बातें हमारे लिए बरकत का बाइस है। और उसके बाद लिखा है, और वो तेरे जवान रोया और तेरे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मेरे अजीजों, आप देखते हैं कि ख्वाब, बहुत से लोग आके गवाहियां देते हैं ख्वाबों की। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कोई ख्वाब की कोई गवाही देता है, पर इन 2 सालों में लोगों ने ख्वाब की जो है गवाहियां देना शुरू कर दी। वो ये कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसी बातें होंगी जो आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगी, आपकी जिंदगी के रवैयों को तब्दील कर देगी, आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देगी, आपकी सोचों को तब्दील कर देगी, आपके ख्यालों को तब्दील कर देगी। वो कौन सी चीज है जो तब्दील करने की कुदरत रखता है? वो पाक रूह है जो तब्दील करता है, और वो तब्दीली का खुदा है। वो आपकी जिंदगी में आता है, और जिससे हमने शोलों को मांगे, रूह कुदस की आग के शोलों को मांगे, वो शोले हमारी जिंदगियों में जो है जड़ पकड़ते हैं, और फिर हम नूर बनते हैं।
اس میں ہو کے, اور خواب میں بہت سے لوگ آ کے خواب کی رویا کی جو ہے گواہیاں شیئر کرتے ہیں. آپ گواہیوں کو سنتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں. ابھی میری بہن سے ایک بات ہو رہی تھی کل, وہ کہتی ہیں میں نے آپ کو کل دیکھا کہ آپ نے 2 ٹوینز بچے مجھے دیے ہیں خواب میں, حالانکہ لاک ڈاؤن ہے, میں تو کہیں جا نہیں رہی, اور اس طرح سے بس فون پہ ہم دعا کر رہے ہیں. تو خواب میں اور رویا میں دیکھیں گے, خدا کے خادم کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ جتنے بھی خادم بیٹھے ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں, ایسی باتوں کو آپ سنیں گے. خواب میں اور رویا میں خداوند کلام کرتا ہے, بوڑھوں سے کلام کرتا ہے, جوانوں سے کلام کرتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف جوان کلام سنائیں گے, اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا ہر بشر پہ 195 کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن خدا کے خادم پریچ کرتے ہیں. جب آن لائن ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیا سے, اسی طرح سے چائنا سے, اسی طرح سے امریکہ سے, کینیڈا سے, ہر ایک بشر جو ہے گڑ گڑا رہا ہے, خدا کو یہی کہہ رہا ہے خداوند ہمیں وقت دے تاکہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں. اور خداوند نے کہا ہے, اس نے کہا ہے اور بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنی روح ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. یقیناً جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نبوت کرتے ہیں لوگ کہ خدا کے خادم کو پورے جو ہے لیڈرز, بڑے بڑے لیڈرز جو ہے ان کے ساتھ ملیں گے, اور اسی طرح سے بہت سے لوگ نبوت کرتے ہیں آپ کے لیے. میرے عزیزو, آج وہ وقت ہے روح القدس کا, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, ہم زیرو ہیں, اور وہ ہمارا خداوند ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے اور نبوت کرتا ہے, اور وہ ہر بشر پہ ڈالے گا, ہر بشر پہ ڈالے گا. خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور اس طرح بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے, اس کے بعد لکھا ہے اور میں اوپر آسمان پہ عجیب کام اور نیچے زمین پہ نشانات یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے بادل دکھاؤں گا. سورج طریق اور خون جو ہے خون ہو جائے گا. میرے عزیزو, یہ پریشانی والی بات ہے, یہ جب آپ کلام سنتے ہیں تو یہ پریشان آپ کو کر دیتی ہے بات. پر میرے عزیزو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند کا زندہ خداوند ہمیں اطمینان دیتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے, ہمیں جو ہے مشکلات سے دور کر دیتا ہے, اور ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر کرتے ہیں ہم زندوں کے زمین پہ ہیں. اور اس طرح سے خدا کے خادم یہاں پہ بیٹھے ہیں. لوکا اور اس کی 21 باپ اور اس کی 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 آیت کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے گا. لوکا اس کا 21 باپ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 آیت 19 تک پڑھیں. پاکلام سے لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 21واں باپ 10ویں آیت سے 19ویں آیات تک. پاکلام میں یوں لکھا ہے, پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے, اور جا بجا کال اور مری پڑے گی, اور آسمان پر بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے, اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے, اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے, اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے, اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں, کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کا سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا, اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے, بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے, اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکار نہ ہوگا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. پاکلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے کثرت سے برکت ہو. پریز ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات لکھی گئی ہے. یہ باتیں جو آپ کے لیے لکھی گئی ہیں, اس نے کہا ہے قوموں پہ قومیں اور سلطنت پہ سلطنت چڑھائی کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور کلام میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس نے سورج, چاند, ستارے سب کچھ بنایا, اور اس نے کہا ہے کہ میں آسمان پر عجیب کام کروں گا. وہ ستارے چاند بنا کے اس نے کہا ہے کہ میں عجیب کام کروں گا. سلطنت پہ سلطنت اور
कौमों पे कौमें चढ़ाई करेंगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे अजीजों। वो वक्त आता है और वो कहते हैं कि अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त भी पकड़वाएंगे। मेरे अजीजों, ये वो वक्त है, ये वो वक्त आ चुका है। बट रूल कुदुस हमारे साथ है और उसने कहा है लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। यकीनन जो रूल कुदुस से भरे हैं, पाक रूह से मामूर हैं, और खुदावंद हमारे साथ है और खुदावंद हमारे अंदर है। और इसी तरह से उसने कहा है और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा, ये आपकी गवाही देने का मौका होगा। आज चर्चेस बंद हैं, आज सब कुछ बंद है मेरे अजीजों, पर आप आज रूल कुदुस से मामूर हैं। आज आप खुदावंद की बातों को सुनते हैं। हर रोज खुदा के खादम आपके सामने होते हैं, ऑनलाइन प्रीच करते हैं, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पा सके। आप रूह कुदुस से मामूर हैं, क्योंकि रूह जुम्बश करता है आपके अंदर, वो पानियों पे जुम्बश करता है। वो रूह कुदुस वो आज आपके साथ है। हालांकि ये बहुत सी बातें, उसने कहा आसमान पे बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। मकाशफा में भी आप सुनते हैं कि क्या होने वाला है। आप यकीनन, उसने कहा है कि मैं ऊपर आसमान पे अजीब काम और नीचे जमीन पे नशाना यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यकीनन जब खुदा ने आसमान को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, तो ये वक्त आ चुका है मेरे अजीजों। कल मैं जब सुन रही थी न्यूज़ में कि टेक्सास में बहुत तूफान आया और बहुत से घर तबाह हो गए। बहुत सी तूफानी चीज़ें आएंगी जो आपने ना सुनी है ना देखी हैं, पर मेरे अजीजों हमारे अंदर जो हमारे काम करता है वो पाक रूह है, जो हमें तसल्ली देता है और रूह कुदुस से मामूर करता है। उसने कहा रास्तबाजी के लिए होश में आओ, तो यकीनन आज हमें होश में आने की जरूरत है। उसने कहा है बेदिल ना हो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। उसने कहा है मैं हूं, मौजूद हूं, इसलिए मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं। तो खुदावंद का रूह आपके साथ है, वो जो पानियों पे जुम्बश करता है, आज वो आपको बरकत देता है, आज वो आपके साथ है। और आज आपने देखा कि खुदावंद के कलाम में कितनी खूबसूरत बातें उसने कहा है, और वो ये कहकर उन पर फूंकेगा और उनसे कहा रूह कुदुस लो, और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह कायम रहेंगे उनके कायम रहेंगे। रूह कुदुस उसने फूंका, उसने दिया आपको, और उसने कहा जिसके गुनाह, और उसने हमें इख्तियार दिया है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह कायम रहेंगे उनके कायम रहेंगे। मेरे अजीजों, तो खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है, तरक्की का बाइस है, सरफराजी का बाइस है। मुश्किलात हो, दुख हो, तकलीफ हो, पर रूह कुदुस हमें तसल्ली देता है कि हम जिंदों की ज़मीन पे हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसका आना जल्द है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं हर बशर पे डालूंगा। उसने किसी एक को नहीं कहा कि मैं किसी एक पे डालूंगा, उसने कहा है कि मैं अपनी रूह हर बशर पे डालूंगा। आखिरी वक्त में ऐसा होगा और तुम्हारे बुढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे। मेरे अजीजों, बंदियों पे डालेगा, और रूह किस पे डालेगा? वो उन दिनों में अपनी रूह उनमें डालेगा, आप में, मुझ में, जो लोग उससे जो है खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, अमल करते हैं और अपनी जान की फिक्र नहीं करते, अपनी ये इस चीज की बदन की फिक्र नहीं करते, क्योंकि रूह ने जाना है, बदन यहीं पे रह जाना है। मेरे अजीजों, कलाम की ये खूबसूरत बातें आपके लिए जिंदगी की बातें हैं। अपने लिए दुआ किया करें। अभी खुदा ने आपको टाइम दिया है, वक्त दिया है, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और खुदावंद ने हमें छू लिया। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम की वजह से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदा का रूह कुदस आपको कसरत से ब्लेस करे। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, कलाम में लिखा है जो खुदा की खादमा ने बातें शेयर की, हम सारा जलाल यीशु को देते हैं और हम यकीनन
जो उसके बेटे और बेटियां हैं, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और हम खुदा का क्या हैं, चर्च हैं। मैं और आप मसीह का जिंदा घर हैं, जिंदा मस्कन है। मैं और आप क्या हैं, मसीह का चर्च है। मैं मसीह का चर्च हूं और चर्च से नहीं लड़ सकता, रूह खुदा की रूह से नहीं लड़ सकती। तो याद रखें कि जो आज हमने खुदा की खादमा शेयर कर रही थी कि फिर कैसे ये लड़ाइयाँ, कैसे ये झगड़े, कैसे ये नफरतें, तो आज मेरे अजीजों हमने इनको मिटाना है, रूह को मौका देना है। कलाम लिखा है आखिरी दिनों में रूह कुदस तुम पर नाज़िल करूँगा, और रूह कुदस पानियों पर जुम्बश करता था, वो चाहता है आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में जुम्बश करे और हम दूसरों के लिए बायस बरकत हों। पास्टर मुनव्वर आप क्या कहेंगे आज के मैसेज के बारे में? प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि आखिरी दिनों में, तो मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह जिसका वादा यीशु मसीह ने किया, मैं जानता हूँ तुम्हें दूसरा मददगार देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का पाक रूह हमें सिखाता भी है, रहनुमाई भी करता है और बताता भी है कि किस तरह से हमने चलना है जी। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा की खादमा ने दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुदा आपको और बढ़ाए और बरकत दे। और यकीनन खुदा उनका पाक रूह है जो हमें हर किस्म की आफत से, बीमारी से, मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के अंदर भी वो रूह था जो कब्र भी उसे अपने अंदर नहीं रख सकी। बीमारी आप पर गालिब नहीं आ सकती। जब खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर आप दुनिया पर हर चीज पर गालिब आएंगे, क्योंकि खुदा का रूह क्रिएटिव काम करता है। फिर वो आपके जब अंदर होगा तो फिर बड़े बड़े काम करेगा। कलाम में लिखा है कि ना जोर से, ना ताकत से, ना तवानाई से, बल्कि खुदा के पाक रूह से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी मैदान हो जाएंगे। आमीन आमीन। पास्टर शौकत आप क्या कहेंगे? थैंक यू भाई साहब, बहुत खूबसूरत मैसेज खुदा की खादमा ने प्रीच किया रूहुल कुद्स के बारे में। और मैं समझता हूँ कि रूहुल कुद्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है। रूहुल कुद्स जो है वो हर शख्स को आगाही देता है और रूहुल कुद्स के वसीला से जो है हम और बरकत पाते हैं, सरफराजी पाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज जो खुदा का कलाम खुदा की खादमा ने बयान किया वो मेरे लिए था, आपके लिए था कि किस तरह हमने रूहुल कुद्स की आगाही को लेकर चलना है। अपनी ज़िंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स को लेकर आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद और ज़्यादा हमें ब्लेसिंग से मामूर करते जाएंगे। आमीन। एरिक पीटर साहब आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बड़ा तकवीत बख्श कलाम खुदा के वसीला से, कलाम के वसीला से आपने पेश किया। पास्टर साहब, सबसे बड़ी बात कि रूहुल कुद्स के लिए आज हर शख्स फ़ायदा ढूंढता है कि मुझे कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिल जाए, लेकिन उसको गारंटी नहीं है फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन रूहुल कुद्स के लिए कलाम में लिखा है कि हर शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़हूर में आता है। सो जैसा सिस्टर ने बताया कि हर फ़र्द पर, हर बशर पर नूर नाज़र होगा। सो फ़ायदा इसका होता है रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि आपकी ज़िंदगियां फ़ायदे से भरें। और एक खूबसूरत बात जो आप सुबह कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं और आप एक चर्च हैं और हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना। कलाम की खूबसूरत बात जो सिस्टर ने शेयर की कि तेरा एक भी बाल बेका ना होगा। सो अगर मैं चर्च होते हुए किसी दूसरे चर्च के साथ लड़ रहा हूँ, मुखालफत कर रहा हूँ, तो खुदा का वादा उस चर्च के साथ है, उस खादम के साथ है कि तेरा एक भी बाल बेका ना होगा। सो मैं खुदा के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। सो हमें एक दूसरे को फेवर करना है, हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत के रूह को दिखाना है और रूहुल कुद्स के वसीला से अपनी जिंदगियों को फ़ायदों से लबरेज करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मुनीर भाई आप? जी, आज प्यारी बहन के वसीला से खुदावंद ने हमें बरकत बख्शी और उन्होंने आखिरी दिनों के हवाला से और पाकरू के हवाला से जो हमें बताया, और मेरा ईमान है कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा सरफराज करेगा। और ये भी मेरा ईमान है कि वो जल्द खुदावंद ने चाहा तो बड़े स्टेज पर भी मेरी ख्वाहिश है, बल्कि हमारी पूरी टीम की ख्वाहिश है कि वो बड़े स्टेज पर भी बहुत अच्छे अंदाज के साथ आज इन्होंने कलाम को शेयर किया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुनीर भाई, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। और निरा वाकई आपने बड़ा अच्छा कलाम शेयर किया, खुदा आपको बहुत बरकत दे और कसरत से आपको इस्तेमाल करे। तो जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी हैं
اپنی زندگی کے اندر سے جس طرح آپ آج کل فری ہیں, گھروں کو صفائی کر رہے ہیں, کئی دفعہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کونے صاف کر رہے ہیں, ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں, اپنے گھر کو واش کر رہے ہیں, اسی طرح اپنے اندر کو بھی واش کریں. اور اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ میں جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو میں جوتے اتار کر جانے چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ کہاں جوتے اتار کر جاتے ہیں؟ آپ ٹوائلٹ کے اندر جوتے اتار کر جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یسوع مسیح نے کہا کہ تم خدا کا زندہ کیا ہو؟ مقدس ہو. خدا کا زندہ مقدس کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ خدا کا گھر میں اور آپ ہیں. ہمیں اپنے اندر کو بھی کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے, میل کچیل کو نکالنا ہے. اگر ہماری زندگی میں کسی کے لیے کڑواہٹ ہے, کڑواہٹ کو دور کرنا ہے. اگر آج دیکھیں خدا کا روح وہاں پر آتا ہے, کلام لکھا ہے میں ہر بشر پر اپنی روح کو کیا کروں گا؟ ڈالوں گا. لیکن آگے لکھا ہے اپنے بندے اور بندیوں پر, یعنی کہ جو اس کے ہوں گے, یعنی ہر ایک شخص پر. ہر ایک شخص میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بھی آتے ہیں اور شیطان کے بھی بندے ہیں. جس طرح خدا کے بندے اس دنیا میں ہیں, شیطان کے بھی بندے سیم ویسے ہی ہیں. اگر آپ ان کی شکلوں کو دیکھیں وہ بظاہراً انسان لگتے ہیں, لیکن اندر کیا ہے ان کے؟ شیطان بسا ہوا ہے. شیطان کہاں رہتا ہے؟ اگر ہم بدروئے لوگوں کے اندر سے نکالتے ہیں تو وہ انسان ہوتے ہیں بظاہراً. اور جو خدا کے ساتھ جن کی فائٹ ہوئی, میں اس پر بھی شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں, اور خدا کے ساتھ بھی فائٹ ہوئی جب, تو خدا نے ان فرشتوں کو گرایا تو وہ کہاں گرے؟ زمین پر گرے. اور وہ شیطان کی فوجیں کن کو استعمال کرتی ہیں؟ انسانوں کو استعمال کرتی ہیں. تو چیک کریں کہ کیا آپ کہیں شیطان کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے؟ کیا آپ کو شیطان اپنے لیے استعمال تو نہیں کر رہا؟ میرے عزیزوں, ہمیں اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ شیطان کو نکالنا ہے اور یسوع کو اپنے اندر جگہ دینی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کرایہ دار کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ مالک اس کو کہتا ہے چلو جی چلو نکلو. آج کل میرے پاس ایک بچہ, میرا بیٹا تھا, وہ آیا مجھے کہنے لگا پارسا میرے مالک مکانوں کے ساتھ میری اچھی بنی نہیں, تو وہ میں اب کیا ہے کہ میں دوسری جگہ پر رہ رہا ہوں. تو اسی طرح آپ اپنے گھر کے مالک ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کی صفائی خود کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی کرایہ دار رکھا ہوا ہے, کوئی بھی کرایہ دار کیا ہے, ہو سکتا ہے چوری کرنے والا ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے چغلخوری کرنے والا ہو, یا کوئی اور بری بات کرنے والا ہو, تو آج اس کرایہ دار کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیجئے, اس کو نکالیے اور خدا کو کہیے کہ خداوند تیرا روح, کلام لکھا ہے خدا پاک ہے اور پاک جگہ پر رہتا ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اگر دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں غیر زبانیں بھی بولتے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں بڑے اچھے ہیں, لیکن اندر ان کے گند بھرا ہوا ہے. تو میری عزیزوں ذرا اپنے گند کو بھی نکالیں, کیونکہ خدا کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک دلوں میں رہتا ہے. خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے, نہ کہ اس کی صورت پر. تو آپ جتنے بھی ناظرین ہیں اپنی اپنی صفائی کریں. یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے پھر آپ ہلاک ہو جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہ ہو توبہ کرنے کا. کلام میں لکھا ہے جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں. تو میرے عزیزوں, خدا کی خادمہ نے جو کلام شیئر کیا ہے کہ اپنے روح کو ہر بیٹے اور بیٹی پر نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے کیا کریں گے؟ بیٹیاں نبوت کریں گے, اور بڈھے کیا کریں گے؟ خواب دیکھیں گے. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, میں آج ہی صبح ندا کو جب میں اٹھا تو میں واش روم میں گیا تو میں دانت صاف کر رہا تھا, تو میں ندا کو کہہ رہا تھا ندا ساری رات میری خوابوں میں گزر جاتی ہے, صبح اٹھتا ہوں تو پھر شروع ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا میں تھک جاتا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح القدس میں دیکھتا ہوں جگہ بجگہ خوابوں میں وہ جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا. خدا کا روح القدس کیا ہے؟ مجھ پر ہے, اور میرا بدن اس کا چرچ ہے, اور میں اس کی روح ہوں. اور یاد رکھیں جب ہم خدا کو موقع دیں گے تو پھر ہی خدا ہمیں استعمال کرے گا. میں کئی دفعہ خدا کو کہتا ہوں خداوند اب میں تھک گیا ہوں, لیکن کلام میں لکھا ہے جسم کمزور ہے مگر روح کیا ہے؟ مستعد ہے, طاقتور ہے, پاورفل ہے. اسپرٹ کیا ہے؟ طاقتور ہے,
पावरफुल है। तो खुदा का रूह जो है वो हमारी कमजोरी में हमारा क्या बनता है, जोर बनता है। तो आप जितने भी हैं, आपके पास मौका है, इन दिनों में घरों में है, तो अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें, खुदा को मौका दें, अपने ध्यान फिक्र ना करें किसी चीज़ की, बल्कि अगर कुछ भी नहीं है आप शुक्र करें हर एक बात में, और अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं और खुदा को कहें कि इन दिनों में मुझे पाकरू से ममूर कर दे। खुदा तेरा पाकरू मुझे भी इस्तेमाल करे, जिस तरह तू पास्टर नूर फजल को इस्तेमाल कर रहा है, खुदा की खादमा को इस्तेमाल कर रहा है, मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरा बेटा और बेटी बनकर सारी जिंदगी अपनी नहीं तेरी मर्जी को पूरा करूं। उसके बेटे ने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम क्या कहते हैं, हमारी मर्जी पूरी हो, खुदावंद तेरी मर्जी ना पूरी हो। हमारी मर्जी क्या है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलें। खुदा की मर्जी डिफरेंट होती है। जो बाप है, बच्चे चाहते हैं वो अपनी मर्जी से हर काम करें, लेकिन बाप चाहता है कि बच्चे मेरी मर्जी के मुताबिक काम करें। और फिर ही बाप खुश होता है जब बच्चे उसकी मर्जी के मुताबिक क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर बाप को क्या होता है, खुशी होती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जो मेरी मर्जी को पूरा करता है। इसी तरह मैं देखता हूं, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरा बाप फजल था, वो भी चाहता था कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। इसी तरह अगर आप भी बाप हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होती है कि आपके बच्चे जो हैं मेरी मर्जी के मुताबिक चले। अगर उन्होंने शादी भी करनी है मेरी मर्जी के मुताबिक करें, लड़की मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए बाप की। और अगर कोई काम करना है, बाप कहता है मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, ऐसे मैं बेटा चाहता हूं तुम काम करो। इसी तरह जो मेरा और आपका आसमानी बाप है वो भी चाहता है कि मैं और आप, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, वो भी चाहता है हम उसकी मर्जी को पूरा करें। तो आए मेरे अजीजों, अपनी नहीं उसकी मर्जी पूरी करें। जब उसकी मर्जी पूरी करेंगे तो फिर कलाम में लिखा है तुम्हारी हर एक खुशी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। फिर मेरी और आपकी खुशी भी पूरी होगी और बाप की भी खुशी पूरी होगी। जब खुश होता है तो फिर रूल कुदस इनाम में गिफ्ट देता है। तो आए, आज के बाद अगर गिफ्ट लेना है, गिफ्ट लेने के लिए लोग कहते हैं पादरी साहब, अभी हम जैज कैश दे रहे थे तो लोग कहते हैं जस्ट पादरी साहब आप हमें सेंड कर दें, ये ब्लेसिंग होगी हमारे लिए। तो अगर आपने ये दुनिया के गिफ्ट लेने की बात करते हैं, तो अगर आपको हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट लेना चाहते हैं तो वो रूल कुदस है। आए पाकरू को लें अपनी अपनी जिंदगी में। आज कहें कि खुदावंद तू मुझे पाकरू से ममूर कर, रूल कुदस तू मुझ पर ठहर जा, जैसे तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मैं घटूं और तू नजर आए। आज लोग चाहते हैं हम नजर आए, अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो खुदा छोटा कर देगा। याद रखें कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा खुदा उसको बड़ा करेगा। यीशु मसीह को देख के उसने अपने आप को छोटा किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज यीशु के नाम से बदरूहें भागती हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और यीशु का खून। आज लोग कहते हैं कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं कोरोना वायरस की दवाई है यीशु का खून। यीशु के खून में कोरोना वायरस की शिफा है। तो मेरे अजीजों, उसके खून को अपनी जिंदगी में लीजिए और फिर रूह कुदस को लीजिए। कलाम में लिखा मैं जाता हूं, तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता, वो कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। तो अगर आजादी चाहते हैं बीमारी से, इब्लीस से, गुर्बत से, परेशानियों से, तो फिर किसको लीजिए, यीशु मसीह को लीजिए, उसके पाक रूह कुदस को लीजिए। जब रूह कुदस आपके साथ होगा तो आपका मददगार होगा, आपको ईवल से भी बचाएगा, आपको बीमारी से भी बचाएगा, गुर्बत से भी छुड़ाएगा, लानतों से आजाद करेगा और आपको फतह से बढ़कर गलबा भी देगा। कलाम में लिखा है तेरे दुश्मन एक ही रास्ते से आएंगे और कितने रास्तों से, 7 रास्तों से होकर भागेंगे। आए, अपने आप को सरेंडर करें उसके आगे, अपनी जिंदगी को उसको दे दें। अगर आज तक आपने मसीह को नहीं दिया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटों, यीशु मसीह को दे दीजिए कि ये खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं अपनी रूह को तेरे सुपुर्द करता हूं, अपने बदन को तेरे सुपुर्द करता हूं।
खुदा मैं अपने बदन की सफाई करता हूं, हर एक गंदी बात खुदा जो तुझे नापसंद है, आज मैं अपने इस घर के अंदर से, खुदा तेरे चर्च के अंदर से, जो मेरा बदन है तेरा चर्च है, खुदा इसकी आज मैं सफाई करता हूं। कहें इब्लीस यीशु के नाम में मेरे बदन को छोड़ और मसीह के नाम में जाता रहे। मेरी रूह यीशु की रूह है, इब्लीस तेरा कोई इख्तियार नहीं मेरी रूह पर कि तू इसे कंट्रोल करे, तू इसे इस्तेमाल करे। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद ये चर्च तेरा चर्च गंदे कामों के लिए इस्तेमाल हो, गंदी बातों के लिए इस्तेमाल हो। खुदा तू इसे पाक कर अपने बेटे के खून से धोकर, ताकि आज के बाद मैं नया बेटा नई बेटी बनकर खुदा तेरे बेटे यीशु को खुश करूं। मसीह तेरा शुक्रिया, तूने अपनी जान को मेरे लिए दिया है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूं। खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। और जितने भी आप देख रहे हैं इस वक्त आप बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रखें। जितनी भी आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं, आप यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, अनवर फजल ऑफिशियल के जरिया से, और मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी देख रहा था और मैं पढ़ रहा था कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट। तो आप बेटी ने लिखा है कि मेरे वालदैन कोरिया में है, मेरा वालिद सख्त बीमार है, मैं बेटी आपके वालिद के लिए दुआ गो कोरिया में, खुदा का पाक रूह उसकी हिफाजत करे और सलामती दे। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट और मेरे प्यारों ने लिखी हैं यूट्यूब पर आपने लिखी हैं, और इसी तरह आपने अनवर फजल ऑफिशियल पर लिखी हैं, हमें लिखकर प्रेयर रिक्वेस्ट आपने फोन के जरिए से भेजी हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और खुदा का रूल कुदस जिनके पास बिजनेस नहीं बिजनेस दे, आपके पास खाने को नहीं खाने को मुहैया करे, बिल अदा करने को नहीं है बिल को अदा करने के लिए मुहैया करे। कलाम में लिखा है फिक्र ना कर। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप फिक्र ना करें, अपनी फिक्र खुदा पर छोड़ दें, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरी खादमा के लिए, निदा के लिए। तूने अपनी बंदी को ये कलाम दिया, तेरी बंदी ने खूबसूरत कलाम शेयर किया, और खुदा तो अपनी बेटी को और गहरे मुकाशफात दे, ताकि जब तेरी खादमा प्रीच करे तेरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। आज के बाद तेरा रूहुल कुद्दस से और कसरत से इस्तेमाल करे निदा को। इसी तरह मैं अपनी तमाम बेटियों के लिए आज दुआ करता हूं, जितनी भी टीवी पर देख रही हैं, बेटे देख रहे हैं, इन बेटे और बेटियों को भी तैयार कर, ताकि ये तेरे वॉरियर बन जाएं, ये तेरे खुदा कलाम सुनाने वाले बेटे और बेटियां बन जाएं, दुआ करने वाले बेटे और बेटियां बन जाएं, और खुदाम इनको भी कसरत से इस्तेमाल करना। इसी तरह खुदाम देख, मैं तमाम चर्चेस के लिए, पासबानों के लिए बरकत चाहता हूं, जिनके चर्च बंद हैं, पास्टर परेशान है, उनके बिल नहीं अदा हो रहे। खुदाम तेरा पाक रूह उन पास्टर की सारी जरूरतों को पूरा करे। जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने बिजली के बिल देने हैं, खाने के बिल देने हैं, किराए के मकान है जिनके, खुदाम जिन्होंने किराया अदा करना है, उनके पास पैसे नहीं है, आज हम सारे मिलकर तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तो इनका किराया भी मुहैया कर, इनके बिल भी मुहैया कर, ताकि तेरा पाक रूह कुद्दस काल के वक्त, वबा के वक्त इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। जिनके पास खाने को नहीं है, हम तेरे खादम मिलकर तुझसे दरख्वास्त करते हैं, तू खुदाम इनको खाना भी प्रोवाइड कर, ताकि मसीह के नाम में तेरा पाक रूह कुद्दस इनका मददगार हो। खाना भी जिस तरह कौवे खुदाम तेरे लोगों को खाना देते रहे हैं, तेरे बंदा को खाना देते रहे हैं, इसी तरह खुदाम इनके लिए भी इस्तेमाल कर लोगों को। खुदाम तेरा पाक रूह कुद्दस इन्हें मुहैया करे। मैं दुआ करता हूं तेरा रूह कुद्दस जो बीमार हैं, कैंसर के मरीज हैं, कैंसर बाप बेटे रूह के नाम में जाता रहे। हर तरह की खुदाम देख, जो भी गिल्टियां हैं, ट्यूमर हैं जिनके, ट्यूमर बाप बेटे रूह के नाम में जाते रहे। अभी इसी घड़ी इनके ट्यूमर यीशु नासरी के नाम में रिमूव हो। और खुदाम जिस बच्चे की हड्डियां टूटी हुई हैं, और खुदाम देख इसके पस पड़ गई है जख्मों में,
इसकी पस यीशु के नाम में सूख जाए, इस बेटे के जख्म यीशु के नाम में सूख जाएं, टूटी हड्डियों यीशु के नाम में जुड़ जाओ। अभी इसी घड़ी जिन जिन की हड्डियां टूटी हुई हैं यीशु के नाम में जुड़ जाएं। दिनों का काम सैकड़ों में ज़ूर में आए, जिनको गैंग्रीन पड़ी हुई है, खुदाम डॉक्टर ने हिस्से जिस्म के हिस्से काटने का कहा है, हम इनकी गैंग्रीन को बाप बेटे रूह के नाम में खत्म करते हैं। शुगर यीशु के नाम में निकल जा, शुगर यीशु के नाम में छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में जाता रहे। और खुदाम मैं दुआ करता हूं हैदर गिल के लिए जो इस वक्त खुदाम ज़िया हॉस्पिटल में है, भाई यूसुफ हैदर के भाई के लिए जिसकी नजर जाती रही है, खुदाम जिसकी एज भी अभी 30 साल है, खुदाम तो इसको छू और इसे जिंदगी दे ताकि हैदर गिल यीशु के नाम में जिंदगी पाए। तेरा खून इसको धोए और पाक करे, इसकी शुगर का लेवल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल काम करना शुरू करे। जिन बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और खुदा मैं देख रहा हूं ये छोटे बच्चे हैं अभी, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में इन बच्चों को छोड़, अभी इसी घड़ी जाता रहे ताकि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल काम करना शुरू करे। और खुदा मैं दुआ करता हूं ये छोटी बच्ची जो खुदा बहुत छोटी है, इसकी शुगर है, शुगर यीशु के नाम में अबलीस इसे छोड़, उठा शुगर यीशु के नाम में निकल जा। और मैं दरख्वास्त करता हूं खुदाम तेरा पाक रूल कुदस, खुदाम देख जिनके स्टमक के अंदर खराबी है, स्टमक के अंदर दर्द है, मैदे की खराबी है, मैदे की खराबी यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह की खुदाम किडनी की खराबी, किडनी का स्टोन यीशु के नाम में रिमूव हो। जिनके पत्थरियां हैं, पत्थरियां बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे। जिनकी किडनी फेल हो चुकी हैं, गुर्दे वाश हो रहे हैं, खुदाम तो इनके गुर्दों को छू और सलामती दे। गुर्दों यीशु के नाम में शिफा पाओ। हर तरह की आंखों की बीमारी हो, आंखों की खराबी यीशु के नाम में जाती रहे। नजर की कमजोरी जाती रहे, धुंध और मोतिया जाला यीशु के नाम में खत्म हो। नजर को कमजोर करने वाली स्पिरिट मसीह के नाम में जाती रहे। हर तरह की कानों की बीमारियां, कानों के अंदर से पस आना, कानों के अंदर से दर्द का आना, कानों की दर्द, कानों की पस यीशु के नाम में स्टॉप हो। हर तरह के गले की खराबी, टॉन्सिल, गले के गिल्लड़, गले का इन्फेक्शन यीशु के नाम में जाता रहे। हर तरह के मुंह के जख्म, जिनके मुंह के अंदर जख्म हो गए हैं, खुदावंद इनके मुंह के जख्मों को हील कर, दांतों की खराबी को रिमूव कर। हर तरह की बाल जड़ की बीमारी बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे। जिनके बाल झड़ते हैं मसीह के नाम में स्टॉप हो। खुदावंद देख जिनके ब्रेन सिस्टम में खराबी है, यादाश्त की खराबी है, और खुदावंद जो बहन मेंटली तौर पर भाई परेशान है, जिसकी बीवी मेंटली डिजीज में गिरफ्तार है, खुदावंद स्ट्रेस है, खुदावंद तेरा पाक रूह इसके दिमाग को छुए, इस बहन का दिमाग नॉर्मल काम करना शुरू करे। और खुदावंद जितने भी मेंटली स्ट्रेस में हैं, हम ज़हनी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं काम कर रहा, ज़हनी तवाज़ुन बाप बेटे रूह के नाम में नॉर्मल काम करना शुरू करे। और देख खुदावंद जो बेटी घर से भाग जाती है, इसके घर वाले पकड़ कर इसको कई बार इस बच्ची को लेकर आए हैं, खुदावंद मैं इस बेटी को बाप बेटे रूह के नाम में कम देता हूं। अबलीस यीशु के नाम में इस लड़की को छोड़, अभी इसी घड़ी जाता रहे, और आज के बाद तेरा कोई काम नहीं इब्लीस, तो इस बेटी को घर से भगाए ले जाए यीशु के नाम में। खुदावंद आज के बाद तेरे पाकरू की बाढ़ को इस बेटी के चारों तरफ लगा देता हूं, ताकि ये घर में रहे और आइंदा कभी भागने ना पाए। और तेरा पाकरूल कुदस खुदा मैं दुआ करता हूं, जो भी बुरी रूहें जिनको तंग करती हैं, बुरी रूहें इनके दिमाग पर कंट्रोल करती हैं, इनके दिमाग का सारा होल्ड, सारा कंट्रोल तेरे बेटे यीशु के हाथ में देता हूं। हर तरह की पैरालाइजपन, जितने भी पैरालाइज हैं, जिनके खुदाम लकवा हुआ है, खुदाम बाजू नहीं काम करते, टांगे काम नहीं करती, इनकी टांगों को खोल,
बाजुओं को खोल, इनके जुबान को खोल, ताकि ये बोलना शुरू करें। और मैं दुआ करता हूं खुदाम जितनों के भी जहां जहां भी बीमारी है, एक एक की बीमारी को हील कर। जो बच्चे बीमार हैं, इन बच्चों को सलामती दे। खुदाम देख, तूने पतरस की सास को जब वो तब में मुब्तला थी, बुखार में मुब्तला थी, तू उठ खड़ा हुआ, तू उसकी तरफ झुका और तूने तब को डांटा। तूने कहा तब यीशु के नाम में जाती रहे, बुखार यीशु के नाम में जाता रहे। जितनों को बुखार है, मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, फीवर यीशु के नाम में जाता रहे, खांसी यीशु के नाम में जाती रहे, सांस की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, अभी इसी घड़ी। और खुदाम देख, जिनको अगर किसी को भी कोरोना वायरस है, यीशु के नाम में जाता रहे। इनके घरों से कोरोना वायरस यीशु के नाम में जाता रहे, ताकि किसी के घर में कोरोना वायरस दाखिल ना हो, बल्कि बरे का लहू इन्हें प्रोटेक्ट करे। तेरा खून इनके घरों पर, इनके बिस्तरों पर, इनके बेडरूम पर, इनकी चौखटों पर लेता हूं। तेरा खून इनको महफूज रखे और सलामती बख्शे। पाकरू, जिनके हार्ट काम नहीं करते, हार्ट के बंद वाल बाप बेटे रूह के नाम में खुल जाएं, ताकि इनके हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल काम करना शुरू करें। जिनके खुदाम जिगर के अंदर खराबी है, जिगर की खराबी जाती रहे, खून नहीं बनता, खून बनना शुरू हो। और मैं दुआ करता हूं जितनों के अजीज हॉस्पिटल में हैं, हम तेरे खादम मिलकर जितने आईसीयू में हैं उनके लिए सलामती चाहते हैं, जितने भी मेडिकल वार्ड में हैं उनके लिए सलामती को मांगते हैं। जिनके फादर बीमार हैं उनके माँ बाप के लिए जिंदगी उम्र की दराजी को मांगते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं जिन बेटियों ने अपने बाप की दरखास्त को तेरे आगे रखा, माओ की दरखास्त को तेरे आगे रखा, जिन बच्चों ने, उनके वालिदैन को जिंदगी उम्र की दराजी दे, ताकि वो लंबी जिंदगी पाएं और तेरे नाम की गवाही दें। मैं तुझसे दरखास्त करता हूं जितनों के पास जॉब नहीं, जॉब दे, घर नहीं, घर जैसी बरकत दे, गाड़ी नहीं, गाड़ी जैसी बरकत दे। तेरे कलाम में लिखा है, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे बाहर हूं। तो देख खुदाम, तो उनकी सारी जरूरतों को बाप बेटे रूह के नाम में पूरी कर। और मैं अपने तमाम आइज़ैक टीवी के पार्टनर के लिए बरकत चाहता हूं, अपने तमाम अजीजों प्यारों के लिए बरकत चाहता हूं। जितने भी जेलों में हैं उनके लिए हम रिहाई को मांगते हैं और दरखास्त करते हैं। खुदा हम देख, तेरा पाक रूह कुद्दस जितने भी हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, अनवर फजल ऑफिशियल पर फेसबुक पर, अनवर फजल ऑफिशियल यूट्यूब पर, इंटरनेट की दूसरी डिवाइसेस पर, आइज़ैक टीवी पर, एक एक को मैं तेरे बाप बेटे रूह के नाम में बरकत देता हूं, फेवर देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं, ताकि तेरी आंखें इनकी तरफ मतवज्जो रहें, पाकरू महफूज रखे और इन्हें बरकत दे। खुदावंद एक एक दरखास्त को मैं तेरे हाथ के नीचे लाता हूं। जितनी भी दरखास्तें लिखी गई हैं इनको पढ़ और जो तेरे प्यारों ने लिखा है वैसा ही कर। मसीह बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। और जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं इनकी स्टडी में मदद कर, ताकि जो कुछ ये पढ़ें इनके खूब ज़हन नशीन हो। मैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए। और खुदा मैं डॉक्टर जवेद साहब को जो केपीके में खुदा कोरोना वायरस का इलाज करते करते खुदा ने अपनी जान का नजराना दे दिया उन्होंने। खुदा प्यारे भाई डॉक्टर जवेद, उनकी फैमिली के लिए जो गमज़दा है, तसल्ली की दुआ करता हूँ। और जितने भी हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर्स, जितने भी सेंट्री के वर्कर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जितने भी उनकी भी हिफाजत कर, जितनी भी हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी हिफाजत कर। और इसी तरह खुदाम जो हमारे सेंट्री के वर्कर, रोड एक्सीडेंट हुआ है पुलिस गाड़ी से गुजरने वाला में, हम उस भाई के लिए जिसकी टांगें टूटी हैं, यीशु तेरा खून उसकी टांगों पर लेते हैं। उस सेंट्री वर्कर्स, उन सेंट्री वर्कर्स के लिए
ہم جن پر پولیس وین چڑھ گئی خداوند ہم دعا کرتے ہیں ان کو صحت اور تندرستی دے, ان کی ٹوٹی ہڈیوں کو خداوند تو جوڑ تاکہ وہ بھائی دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں, غریب ہیں تو ان کی مدد کر. اسی طرح خداوند دیکھ جتنے بھی روڈ ایکسیڈنٹس ہیں خداوند جن کے آرگن ٹوٹے ہوئے ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہیں, تو ان کو جوڑ اٹھا کھڑا کر. اور میں دعا کرتا ہوں آج جتنے بھی ٹریول کریں, جہاں جہاں بھی جائیں, جو ٹریول بھی کر رہے ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کے گھروں پر تیرا پاک روح مہربان رہے. تمام چرچز کلیسیوں پر تیرا ہاتھ رہے. اور میری دعا ہے آج جتنے بھی ہمارے اس چرچ میں شامل ہیں ہمارے ساتھ آن لائن, ایک ایک کو تو محفوظ رکھنا اور برکت دینا مسیح کے نام میں, آمین آمین. خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرا رہے, آمین. آخری کلمات خدا کے خادم پاسٹر منور فضل دا کریں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ تیری محبت اور روح القدس پاک خداوند تیری رفاقت اور شراکت اس حاضر جماعت پر, ایٹرنل آئی منسٹری پر اور آئزک ٹیلی ویژن پر اور تمام دنیا کے مقدسین پر اب سے اب تک تیرا ہاتھ بڑھا رہے اور تیرا پاک روح ہم سبوں کو چاروں طرف سے گھیرا رہے, اور اسی طرح ہم سب تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہے مسیح کے نام میں, آمین 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 آمین. پریز دی لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے آج کی عبادت کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. خداوند آپ کو برکت دے, آپ سب کے ساتھ ہو. آپ آج کے بعد دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے اور شکر گزاری کریں. خداوند کا فضل آپ پر ہے, اور آپ کیا ہیں مسیح کا چرچ ہیں, اور آپ کیا ہیں مسیح کی روح ہیں, اور روح اور چرچ کیا ہے کسی سے, مسیح کا بدن مسیح کے بدن سے نہیں لڑتا, مسیح کا چرچ مسیح کے چرچ سے نہیں لڑتا. تو آپ سب ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے, اور خداوند آپ سب کو برکت دے. پاکستان زندہ باد.